ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। Jai Jinendra to all. So today we are going to begin the Swadhyay of a new scripture, new Grantha called Swarupa Sambodhan. This Grantha has been written by a great Acharya by name of Akalankadev Swami. He is also referred to as Bhatta Kalank, meaning Bhatta Akalank. The meaning of the word Bhatt means one who is learned, one who is a scholar. That is referred to as a Bhatt. तो इनको भट्ट अकलंक देव भी कहते हैं. So before we dive into the subject matter of the Grantha, which we will start with the Mangalacharan, before that I think it makes sense to understand little bit about the composer of this Grantha. So very briefly, there is a lot written about Akalankadev Acharya, but very briefly, his period is traced back to about 6th and the 7th century, hails from the state of Karnataka. Nowadays in Karnataka, there is actually a mutt. You know, in Karnataka, some people may know, we still have Bhattarak Peeths, right? And Bhattarak Peethas are called mutt. So back in the days when I was there, if you remember, and now I'm not sure if they still visit or not, but we have Charukirti Bhattarak Swami from Moodbidri who had visited us. Then we had Devendra Kirti Swami, the senior one, Devendra Kirti Swami, who had visited us, who was from Humcha Mutt, who was instrumental in performing the Sthapan and the Utthapan Vidhi of our Murtis, right? And taking the Murtis from the old temple to the new temple that we have in JCGB currently. So like that, the mutts are established in Karnataka. So actually there is a mutt established in the name of Acharya Akalankadev in Karnataka right now. And a lot of the information about him is available there in that mutt. I think, if I am not mistaken, it is called Sonda Mutt. तो ये सौंधा, जैसे श्रवण बेलगोल का मठ है, वैसे ही सौंधा मठ भी बहुत फेमस है कर्नाटक में. तो कभी आप धर्म तीर्थ की यात्रा अगर करें तो सौंधा मठ को आप जा सकते हैं. So as I was saying, his time period is around 6th and the 7th century AD, and he has a major contribution in the canon, in the legions of all the Agamic Granth that we have. And he came in at such a time where the literature of Jain Dharma, the influence of Jainism was at its lowest time. Because as the information we understand about Akalankadev, at that time there was a huge rise in popularity of the Buddhist parampara, Buddhist canonical literature, especially in the south and elsewhere. And they were sort of dominating the entire religious structure
and the religious activities and things, and उनका प्रभाव बहुत था वहाँ पे. It was huge, and the influence of Jainism was receding at that time, and it was primarily due to few of the very good scholars of Buddhist monks at that time who propagated and who created a lot of influence, and a lot of the kings also at that time started to follow Buddhism. And because of those monks there was a tremendous onslaught, and the criticism of a Jain dharma was out there at that time, and there were very few to none who could actually defend these criticisms at an intellectual level, right? इसको आगम के भीतर वादी आचार्य कहते हैं. आचार्यों के अनेक प्रकार कहे हुए हैं आगम के भीतर, और उपाध्याय को भी वादी उपाध्याय बोलते हैं और वादी आचार्य बोलते हैं. भगवान का जो समोशरण होता है, उन समोशरणों में आचार्यों की गिनती आती है. उन गिनतियों में बहुत बार अपने को ऐसे भी गिनती होती है कि भगवान के समोशरण में, महावीर भगवान के समोशरण में इतने वादी आचार्य हुए. अब वादी आचार्य का अर्थ क्या है? अब वादी आचार्य वो हैं who are expert and skilled in religious and intellectual debates. They have a tremendous prowess of debating the opposing party, okay, and defeating them in the logic, arguments at an intellectual level, using all of the available evidence, information, shastra, everything else. And in order to do that, right, अगर किसी को उन्हीं के क्षेत्र में डिफीट करना चाहते हैं, तो आपको not only do you need the knowledge of your granthas, but do you also need to be expert at their granthas from which they will be quoting. आई बात ध्यान में आपको? तो वादी आचार्य बहुत कम होते हैं, बिकॉज दे आर इंटेलेक्चुअली वेरी 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 स्मार्ट पीपल. उनको मात्र अपने जैन धर्मों का ही ज्ञान नहीं, लेकिन पर धर्मियों के शास्त्रों का भी बहुत ज्ञान होता था, और इसीलिए वो वाद कर पाते थे और वादों में जीतते थे. अब ये वाद जो है वो विसंवाद नहीं होता था. दिस इज़ नॉट अ कॉरल, दिस इज़ अ इंटेलेक्चुअल डिबेट. इट यूज टू हैपन इन अ फॉर्मल सेटिंग्स एंड विद अ प्रॉपर गाइडेंस ऑफ द पीपल. प्रजा भी वहाँ पे उपस्थित होती थी, एंड यूज टू बी कंडक्टेड इन अ वेरी नाइस मैनर. तो ऐसे में वो लोग भी ऐसे होते थे कि अपना पराजय स्वीकार कर लेते थे कि भाई तुम जो बोल रहे हो सही है, आपने अभी जो उत्तर दिया उसके पास मेरे पास उत्तर नहीं है. तो ऐसे बड़े बड़े महान वादी आचार्य हुए हैं. उनमें से ये एक महान वादी आचार्य हुए हैं आचार्य अलंक भट्ट, और इन्होंने जैन धर्म की बहुत बड़ी रक्षा उस समय में की थी जब जैन धर्म के तारे हैं ना बहुत नीचे थे और बुद्धों का बहुत प्रभाव बढ़ गया था. तो वहाँ पे बुद्धों के एक बहुत बड़े वहाँ पे गुरु थे, उनका नाम धर्मकीर्ति है. तो धर्मकीर्ति के साथ इन्होंने वाद विवाद किया, धर्म सभा बुलाई, वाद विवाद किया, और उसके अंदर ये जीत गए. और उसके बाद भारत के अंदर बहुत जगह भ्रमण करके उन्होंने ऐसे बहुत वाद विवाद जीते, और जैन धर्म का बहुत बड़ा झंडा पताका इन्होंने फहराया तभी. तो ये बहुत बहुत बड़े आचार्य हैं. देखो जैन धर्म में ना ऐसे आचार्यों की गिनती बहुत है. अध्यात्म के क्षेत्र में जैसे आचार्य कुंद जो हैं, ही इज़ वेरी फेमस. In the context of spirituality, Acharya Kund is extremely famous. In the context of Siddhant and philosophy, Acharya Pushpadant, Acharya Dharsen, Acharya Veersen, Acharya Jinsen, ये सब नामी आचार्य हुए, वेरी फेमस. इसी के साथ और एक देर इज अनदर सेक्शन ऑफ द फिलोसॉफी ऑफ जैन धर्म विच यू मे और मे नॉट हैव हर्ड, दैट इज कॉल्ड न्याय. जैसे स्पिरिचुअलिटी है, जैसे सिद्धांत है, वैसे ही न्याय नाम का एक प्रकरण आगम के भीतर है. अब न्याय का अर्थ जस्टिस नहीं है, न्याय का अर्थ होता है लॉजिक एंड रीजनिंग. तो हमारे जैन धर्म के अंदर न्याय शास्त्र बहुत बने हैं. तो ये न्याय शास्त्र के बहुत बड़े प्रधान आचार्य रहे हैं, इसीलिए इतने बड़े ये वादी आचार्य थे.
तो इन न्याय शास्त्रों के अंदर ऐसे युग आए हुए हैं। तो न्याय शास्त्र का पहला युग जो आया है वो आचार्य समंतभद्र देव का है, जिन्होंने रत्नकरण शौकाचार लिखा। वे भी बहुत बड़े वादी आचार्य थे और जिन धर्म की उनके हाथ से बहुत 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 जबरदस्त प्रभावना हुई फर्स्ट सेंचुरी। तो वो एक समंतभद्र का युग था। फिर उसके बाद दूसरा नंबर का युग 6वीं शताब्दी में कहा जाता है अकलंक युग। मतलब देखो, जिनके नाम से युग पहचाने जाते हैं ऐसे ये महान आचार्य हुए अकलंक देव। उनका यहाँ पे जो ग्रंथ है उस ग्रंथ को अपने को यहाँ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। तो ये होते हैं अकलंक युग। और इसके बाद 9th 10th सेंचुरी में और एक बहुत बड़े महान आचार्य हुए जिनका नाम है प्रभाचंद्र। तो उनको कहा प्रभाचंद्र युग। तो ये न्याय जो शास्त्र हैं हमारे, तो ये न्याय शास्त्रों के अंदर बहुत ही मार्मिकता को लिए हुए और बहुत बड़े दिग्गज आचार्यों का अगर जब नाम आता है तो उसमें अकलंक देव का नाम बहुत बड़ा है। वो यहाँ तक कि बड़ा है कि एक अरसे के बाद इनके जो न्याय ग्रंथ हैं वो परवादियों के लिए, परधर्मियों के लिए भी स्वीकृत हो गए। और उन्होंने जो भी वाद किए, रीजनिंग दिया, लॉजिक दिया, उनका काफ़ी प्रचलन अन्य धर्मों के भीतर भी पाया जाता है। और इन्हीं ग्रंथों का रेफरेंस जब दिया जाता है तो उनको यहाँ पे अकलंक न्याय भी कहा हुआ है, जिनके नाम से ही पहचाना जाता है कि ये न्याय के इतने बड़े कर्ता थे कि इन्हें अकलंक न्याय करके उनको अपने आप में प्रशस्ति मिली हुई थी तब के ज़माने में। और ये प्रशस्ति सिर्फ जैनों ने नहीं दी थी। दिस एक्चुअली कम्स फ्रॉम अ प्लेस ऑफ एक्सट्रीम रिवियरेंस एंड रिस्पेक्ट from people who were of other religious denominations. So such great was his influence, what is intellectual capacity. इनके बारे में बहुत कुछ बोला जा सकता है वैसे लेकिन इतना अपने लिए काफ़ी है कि ऐसे महान आचार्य देव होके गए अकलंक देव तो उन्होंने यहाँ पे स्वरूप संबोधन नाम के ग्रंथ की रचना की है तो उसका स्वाध्याय अपन करेंगे। इसको छोड़ के ये जो अन्य भी ग्रंथ इनके रचे हुए हैं उनमें सबसे बड़ा जो उनका ग्रंथ है, जो बहुत स्वाध्यायी जो लोग हैं तथा अन्य भी समाज के भीतर लोगों ने सुना होगा कि नहीं सुना होगा, लेकिन जो तत्वार्थ सूत्र जो हैं और तत्वार्थ सूत्र के जो ऊपर जो टीकाएं बनी हुई हैं, सर्वार्थ सिद्धि के पश्चात दूसरी महत्वपूर्ण टीका तत्वार्थ सूत्र में दिगंबर आमनाई के भीतर अगर बनी है तो उसका नाम है राजवार्तिक। और इस राजवार्तिक के जो कर्ता हैं वे हैं आचार्य अकलंक देव। बहुत बड़ी सुंदर टीका है तत्वार्थ सूत्र की, इन्होंने रची हुई है और इसका पारायण बहुत ज़बरदस्त यहाँ अभी भी चलता है। उसको छोड़ के अभी न्याय के क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी ग्रंथ रचे हुए हैं। लघियस्त्रय नाम का एक ग्रंथ है, सिद्धि न्याय विनिश्चय नाम का एक ग्रंथ है, फिर उसके बाद न्याय विनिश्चय सवृत्ति नाम का एक इनका ग्रंथ है, इसके बाद प्रमाण संग्रह, न्याय चूलिका, बहुत बड़े बड़े ग्रंथों की इन्होंने उत्पत्ति करी हुई है, लिखे हुए हैं। तो हम यहाँ इनको परोक्ष रूप से उनके ज्ञान को, उनके सम्यक ज्ञान को, उनकी ज्ञान संपदा को हम नम्रीभूत होकर नमस्कार करते हैं, वंदना करते हैं, नमोस्तु करते हैं। और इन्होंने यहाँ पे जो स्वरूप संबोधन ग्रंथ जो अपने लिए दिया हुआ है, इसमें अपन प्रवेश करते हैं। देखिए स्वरूप संबोधन ये जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ देखिए अध्यात्म का भी है और इसके अंदर अनेकांतात्मक और स्याद्वाद से आत्म तत्व की सिद्धि की है। ये इस ग्रंथ का मौलिक एंगल है, मौलिक बिंदु है। व्हाट इज स्पेशल अबाउट दिस ग्रंथ इज दिस, क्योंकि स्वरूप संबोधन में आत्मा का स्वरूप जो है वह आत्मा के स्वरूप का यहाँ पे निरावरण, आत्मा के स्वरूप का पूरा जो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, लेकिन ऐसा करते हुए उन्होंने जो किया हुआ है वह अनेकांत और स्याद्वाद को लेकर किया हुआ है। यानी अनेकांत और स्याद्वाद को लेकर आत्म तत्व की सिद्धि यहाँ पे इन्होंने की हुई है इस ग्रंथ के भीतर। तो ये इस ग्रंथ की मौलिकता है।
है ना। ये ग्रंथ जो है, अपन ने जो पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ पढ़ा, उस पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ के भीतर अपन ने क्या पढ़ा भाई, कि अनेकांत और सहद्वाद जैन धर्म के अंदर बहुत महत्ता रखती है, बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब यहाँ तक वहाँ पे ये कह दिया कि अनेकांत और सहद्वाद अगर जिनागम के भीतर निकल गया तो ये बहुत बड़ा दूषण होगा। अर्थात दूसरे शब्दों से कहो कि अनेकांत और सहद्वाद जो है वह जैन धर्म का हृदय कहा हुआ है। और अपन ने जब इसका स्वाध्याय किया था पुरुषार्थ सिद्धोपाय का, तब वापस इसी बात को अपन ने समझ लिया था कि अनेकांत धर्म सहद्वाद तरीके से वस्तु तत्व को समझना कितना महत्वपूर्ण है। तो उसी का सारा विवरण जो है इस ग्रंथ के भीतर अपने को मिलता है। क्योंकि तब के समय में जो अन्य मत वाले थे, उनकी जो प्ररूपणाएं चलती थी वह सब एकांत बुद्धि से, एकांत तरीके से चलती थी। और जैन धर्म का ये मानना है कि वस्तु तत्व जो है वो बहुत कठिन है समझने के लिए, और उस कठिनता को समझाया कैसे जा सकता है, तो अनेकांत रूप से ही समझाया जा सकता है। क्योंकि एक ही वस्तु में अनेक प्रकार के धर्म पाए जाते हैं, अनेक प्रकार के गुण पाए जाते हैं, और उन्हीं सभी धर्मों को अगर समझना है तो अनेकांत के उपयोग के बिना हम इसको समझ नहीं सकते। तो ये जिनागम की बहुत बड़ी अपने लिए देन है। तो इसी चीज़ को देखिए, अपन ये श्लोक को पढ़ेंगे और इस ग्रंथ को समझने का प्रयास करेंगे, तो सारा का सारा दृष्टिकोण जो है वो अनेकांतात्मक दृष्टिकोण आचार्य देव ने यहाँ प्रस्तुत किया हुआ है, जो अपने आप में बहुत सुंदर है, समझने योग्य है। पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ बड़ा था, इट वॉज बिग, राइट? आई मीन इट वॉज 225 श्लोक्स वर देयर, so it took us quite a bit of a time to finish it. But unlike that Granth, this one is small. This has only 25 shlokas. सिर्फ 25 ही श्लोक है इसमें, छोटा सा ग्रंथ है, लेकिन 25 श्लोकों में भी अपने को बहुत कुछ सीखने को यहाँ पे मिलेगा। तो ये जो ग्रंथ है इसमें जो क्रम दिया हुआ है वो श्लोक नंबर 1 से श्लोक नंबर 10 तक, जो पहले 10 श्लोक हैं, वह आत्मा के स्वभाव के बारे में बताया जाएगा। दे विल डिस्क्राइब द नेचर ऑफ द सोल सब्सटेंस, 1 से 10 तक। फिर 10 से 15 आगे के जो 5 श्लोक हैं, 11 से 15, उन श्लोकों के भीतर उस आत्म तत्व को पाने के जो उपाय हैं वो उपाय को बताएंगे। और उसके बाद अंतिम 10 श्लोक जो हैं, उन श्लोकों के भीतर साधक के लिए प्रैक्टिकल बेसिस पे अपने को क्या करना योग्य है जिससे अपन उस पथ पर जा सकें। तो उसका वहाँ पे सारा निरूपण जो है इस ग्रंथ के भीतर अपने को मिलेगा। अब इस ग्रंथ की जो हिंदी कॉपी है, वह हिंदी कॉपी PDF में मिल नहीं पाई, है ना। तो एक इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है ग्रंथ, जो मैंने आप सभी को भेजा हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप में, JCGB स्वाध्याय ग्रुप में मैंने भेजा हुआ है। तो उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और उसका स्वाध्याय कर सकते हैं। बहुत अच्छा ट्रांसलेशन किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी अच्छा है। तो उसके अंदर, उस कॉपी के अंदर एक्चुअल ग्रंथ जो है, प्रीफेस इज क्वाइट बिग. Jagdish Ji Jain has done a wonderful job of writing a very big preface, which is almost more than the book itself. But if anybody has a keen interest in the philosophy and the contrast of the Jain philosophy with respect to other philosophies that were present at that time, arguments and the counter arguments, one can definitely go through the preface of the book. It is extremely well written, and there are a lot of references the author has gathered from various sources, and he has made a very good intellectual presentation. So that is the preface. The actual grantha in that PDF starts on page 73. So the book page is 73. Okay, I think PDF page is something 84 or something.
बट दैट इज वेयर यू विल फाइंड द फर्स्ट श्लोका ऑफ द ग्रंथ. तो उसके पहले का जो सारा जो वहाँ पे लिखा हुआ है वो सब इट्स ऑल प्रीफेस. सो इट इज़ वेरी वेल एक्सप्लेन्ड इन द प्रीफेस. सो फील फ्री टू गो थ्रू इट एट योर ओन लीजर इन योर ओन टाइम. तो अभी क्या करेंगे अपन, तो आपके पास अगर वो कॉपी है तो आप यू कैन गो टू द पेज 73 ऑफ द बुक. ओके, एंड देयर यू विल फाइंड द फर्स्ट श्लोका ऑफ दिस ग्रंथ. वहाँ पे अपने को पहला श्लोक मिलेगा, है ना. तो चलिए अपन पहला जो मंगलाचरण का श्लोक है वहाँ यहाँ पे अपन अभी पढ़ते हैं, है ना. मंगलाचरण का मुक्ता मुक्तैकरूपो यः कर्मभिः संविदादिभिः अक्षयं परमात्मानं ज्ञानमूर्तिर्नमामि तम्. स्वरूप संबोधन के भीतर आचार्य अकलंक देव मंगलाचरण यहाँ पे करते हैं, और इस मंगलाचरण के भीतर आचार्य देव परमात्मा अर्थात अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान, इनको यहाँ पे वे नमस्कार करते हैं. तो क्या कहते हैं, कहते हैं मुक्ता मुक्तैक रूपो यह कर्मिभिः संविदादिभिः. जो मुक्त है तथा अमुक्त है क्रम से, कर्म के संबंध में और ज्ञानादि के संबंध से, वे जो अक्षय स्वरूप हैं और जो ज्ञान मूर्ति है, ज्ञान की मूर्ति है, ऐसे परमात्मानं नमामितम्, ऐसे परमात्मा को मैं अकलंक देव, अकलंक स्वामी नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ, नमोस्तु करता हूँ. ऐसे इस प्रकार से इस ग्रंथ का जो है वह मंगलाचरण किया हुआ है ना. मंगलाचरण, यद्यपि अपन ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ के अंदर में भी जान लिया था कि मंगलाचरण क्यों महत्वपूर्ण होता है और मंगलाचरण का अर्थ क्या है. जैसे मंगलाचरण शब्द अपने आप में क्या बताता है, जो मंगल का आचरण करे सो मंगलाचरण. तो अपने सभी जो ग्रंथ बने हुए हैं वे सभी ग्रंथ मंगलाचरण के साथ ही शुरुआत होते हैं. कई ऐसे विशाल ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों के भीतर 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं. एक तो ग्रंथ के शुरू होने के पहले वाला मंगलाचरण, जैसे अभी इस ग्रंथ के भीतर अपन ने किया. फिर ग्रंथ बड़ा होने के कारण ग्रंथ के मध्य में भी मंगलाचरण दिया हुआ है कई ग्रंथों में, तो उसे कहते हैं मध्य मंगलाचरण. और अंतिम, चूंकि ग्रंथ संपन्न हुआ इसीलिए अंत में भी मंगलाचरण किया जाता है. सभी ग्रंथों में हो ये जरूरी नहीं है. सभी ग्रंथों में मुख्य मंगलाचरण यानी आद्य मंगलाचरण जिसे कहते हैं वह आद्य मंगलाचरण होता है. फिर मध्य मंगलाचरण और अंतिम मंगलाचरण हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन ऐसे भी किया जाता है. जो बड़े बड़े ग्रंथ हैं उन बड़े ग्रंथों के भीतर ये भी पाया जाता है ना. तो मंगलाचरण क्यों करना, इस संबंध में अपन ने पूर्व में जाना हुआ था, है ना. मंगलाचरण करने के पीछे क्या आशय है, वाई शुड मंगलाचरण बी डन. बट अभी वापस अपन यहाँ पे मंगलाचरण कर रहे हैं, इसीलिए संक्षिप्त, बहुत ही संक्षिप्त रूप में समझेंगे. क्या कि मंगलाचरण जो किया जाता है उसके पीछे 4 मुख्य हेतु है ना. पहला हेतु क्या है, तो कहते हैं शिष्टाचार का पालन करना, यानी जिनसे हमें ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा जो अपने इष्ट देवता है, आराध्य देवता है, इनके प्रति बहुमान तथा विनय प्रकट करना. तो ये होता है शिष्टाचार, शिष्टाचार का पालन. तो मंगलाचरण करने से शिष्टाचार का पालन होता है, यह प्रथम हेतु है.
फिर दूसरा हेतु है ग्रंथ की निर्विघ्न समाप्ति। देखो, जब अपन कोई काम जीवन के भीतर करना शुरू कर देते हैं तो बहुत बार काम अपने कंप्लीट होते नहीं हैं, बहुत काम अपने जीवन के भीतर अधूरे रह जाते हैं। और शास्त्रों की रचना करना ये अपने आप में इतना बड़ा मंगल रूपी कार्य है, क्योंकि इसके करने से अनेक जीवों के कल्याण के मार्ग खुलते हैं। तो निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति की प्रार्थना के लिए मंगलाचरण किया जाता है, ताकि जिस ग्रंथ को मैंने शुरू किया है वह निर्विघ्न रूप से समाप्ति को प्राप्त हो जाए, अर्थात मैं उसको समाप्त कर सकूं। तो ये मंगलाचरण का दूसरा हेतु है, आचार्यों ने दर्शाया हुआ है। फिर तीसरा है नास्तिकता का परिहार करना, यानी आप अपने इष्ट देव को नमस्कार कर रहे हैं, आराध्य परमेष्टि को नमस्कार कर रहे हैं, तथा उनके द्वारा बताए गए वस्तु स्वरूप के ऊपर आप श्रद्धा दिखा रहे हैं। इसका मतलब ये है, इससे नास्तिकता का परिहार होता है, यानी अस्थिरूप वस्तु व्यवस्था है उसके प्रति क्या कर रहे हैं हम विनम्र भाव से हम उसे नमोस्तु कर रहे हैं, हमारी श्रद्धा प्रकट कर रहे हैं। इसीलिए निर्विघ्न ग्रंथ की समाप्ति, नास्तिकता का परिहार और शिष्टाचार का पालन, ये 3 हेतु बताए। और अंतिम हेतु है पुण्य की प्राप्ति। आचार्यों ने स्वयं ही कहा हुआ है कि ये चारों ही जो मुख्य हेतु है वह मंगलाचरण के भीतर पाए जाते हैं। क्योंकि देखो, आज अपने को ग्रंथ ये जो प्राप्त हुआ है, मिला हुआ है, तथा जो भी धर्माचरण रूप क्रिया कर रहे हैं, या फिर जीवन के भीतर जो भी सुख अपने को आज प्राप्त हैं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में रहो, सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है कि उस जीव ने कभी न कभी पूर्व जन्म में धर्म रूप आचरण किया हुआ था, उसे किसी न किसी प्रकार का बहुत पुण्य योग का आचरण उसने धर्म पूर्वक जीवन जिया था, और इसी के कारण पुण्य योग से आज उसको सुख, संपदा, धन, ऐश्वर्य सब कुछ जीवन के भीतर प्राप्त है। सिद्धांतिक दृष्टिकोण से इसका मुख्य आधार जो है वह धर्माचरण रूप प्रवृत्ति है। अर्थात क्या है? अर्थात पुण्य है। तो मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन होने के लिए भी पुण्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि सच्चे देव शास्त्र गुरु का समागम पाना, धर्म को पाना, इसमें रुचि होना, ये सब कार्य पुण्य के बिना संपादन नहीं कर पाते, नहीं होते। इसीलिए पुण्य की भी आवश्यकता है मोक्ष मार्ग में। तो यहाँ पे आचार्यों ने इसीलिए कहा कि मंगलाचरण की एक हेतु जो है वह पुण्य की प्राप्ति है। अब ये 4 हेतु बताए हैं मंगलाचरण के, उसके साथ में अभी मंगल रूप कौन है? मंगल का अर्थ क्या है? जो अपने लिए इष्ट है, जो अपने लिए अच्छा है। अच्छा मतलब क्या? अच्छा का अर्थ ये नहीं लेना कि अपने को अपने कषायों की पूर्ति हो रही है इसीलिए अच्छा है, क्योंकि हम लौकिक भाषा के भीतर जब अच्छा यूज़ करते हैं उपयोग शब्द, तब ऐसा समझते हैं अपन कि अपने जो लौकिक वांछाएं पूर्ण हो रही है, विषय कषाय पूर्ण हो रहे हैं, सो अच्छा। सो वैसा अच्छा नहीं। जो जीव के लिए अच्छा यानी बेनिफिशियल हो, जो कल्याण का हो, उस अपेक्षा से अपन कह रहे हैं कि ये कल्याणप्रद है। तो मंगल रूप इसीलिए है, मंगलयति, सो मंगल, यानी जिसमें पाप का नाश होता हो और पुण्य की जहाँ प्राप्ति होती हो उसको वहाँ मंगल कहा हुआ है, मंगल कार्य है ना। तो धर्म क्षेत्र के भीतर सारे ही कार्य होते हैं वो मंगल रूप होते हैं। तो इसीलिए ये मंगल रूप कार्य भी जो है वह क्या है? मंगलाचरण है। तो ये ऐसे मंगल भी जो है 2 प्रकार के बताए हैं आगम के भीतर, एक मुख्य मंगल और दूसरा गौण मंगल। तो मुख्य मंगल जो होता है वह जिनेंद्र देव, सिद्ध परमात्मा तथा पंच परमेष्टि, इनको नमस्कार रूप से जो इनका ये किया जाता है, नमस्कार इनको किया जाता है, मंगलाचरण किया जाता है, यही जो है ये मुख्य मंगल है। अर्थात सिद्ध और अरिहंत परमेष्टि जो है वह मुख्य मंगल के रूप में गिनाए गए हैं, है ना। तो इस प्रकार से अपन क्या करते हैं? मंगलाचरण करते हैं और नमस्कार भी करते हैं। तो
ये अब समझने के पश्चात में अपन क्या करेंगे अभी यहाँ पे देखिए, अब जो मंगलाचरण किया हुआ है उस मंगलाचरण का अर्थ जो है वह अपन समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं, मुक्ता मुक्तैक रूपो यह कर्मिभिः संविदादिभिः अक्षयम परमात्मानं ज्ञानमूर्तिर्नमामितम्। तो यहाँ पे आचार्य देव कह रहे हैं वह परमात्मा जो मुक्त रूप है तथा अमुक्त रूप है, कर्म तथा ज्ञान के संबंध में जो अक्षय रूप है, उन परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो देखो अपने को यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे कह रहे हैं कि परमात्मा मुक्त कैसे हैं। तो देखो परमात्मा का स्वरूप यहाँ बताया, मुक्त भी है और अमुक्त भी है। आज तक हमने ये सुना था कि जो परमात्मा होते हैं वे सिर्फ मुक्त ही होते हैं, वो अमुक्त कैसे हो सकते हैं, और अमुक्त अगर नहीं हुए तो फिर उनको हम परमात्मा कैसे कहेंगे। तो यहाँ पे एक तो क्वालिटी जो दिखा दी वो मुक्तपने की दिखा दी जो अपने को समझ में आती है। तो जो मोक्ष को प्राप्त होते हैं, जो एक्चुअली मोक्ष को प्राप्त होते हैं, उन्हें मुक्त कहा हुआ है ना। संसार के बंधनों से मुक्त होना, इसीलिए मुक्तता कही हुई है। यानी संसार शरीर भोगों से निवृत्त होकर, वैराग्य को प्राप्त होकर, रत्नत्रय की आराधना करते हुए कर्म निर्जरा जो की जाती है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आगम में मोक्ष यानी क्या है, यानी संसार से छूटना, सो मोक्ष है। यहाँ छूटने की बात हो रही है, मुक्त होने की बात हो रही है। तो मुक्त कब हुआ जाएगा, कोई बंधा है तो ही मुक्त होगा ना। अगर पहले से अगर हम ये माने कि कोई बंधा ही नहीं है, if we do not recognize the principle of bondage, right, and if we say that everybody is pure, और हमने ये माना कि भाई कोई बंधा ही नहीं है, तो फिर मुक्तता का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। तो पहले अपने को ये मानना पड़ेगा कि ये जो जीव है ये बंधा हुआ है, देयर इज एक्चुअली a bondage। और वो बंधा हुआ किसका है, तो यहाँ पे आचार्य देव ने कहा कर्म भी, यानी कर्मों से ये आत्मा लिप्त है। संसारी अवस्था के भीतर ये आत्मा कर्मों से लिप्त है, ये मानना पड़ेगा। आप अगर ऐसा नहीं मानते हो तो मोक्ष का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। आई बात समझे, क्योंकि मोक्ष तभी होगा जब आप बांधोगी कि भाई मैं आई एम इन अ केज। If you accept that you are in a cage, then we will talk about liberation and freeing oneself from the cage. If we don't agree and accept that we are in the cage in the first place, then the question of release, the absolution, right, that does not arise. But Agama states that all the jivas, those who are in the state of transmigration, sansara, जो संसारी जीव हैं वे सभी बंधे हुए हैं। किससे बंधे हैं, तो अष्ट कर्मों से बंधे हुए हैं। तो जब अष्ट कर्मों से छूटना होगा तब यहाँ कहते हैं मुक्त रूपाय, जो मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। अब देखो मुक्ति को जो प्राप्त हुए हैं वे मुक्त हैं, ये हमने सुना है। परमात्मा है, मुक्त होते हैं, ये हमने सुना हुआ है। लेकिन इसी परमात्मा को आप अमुक्त कैसे कह रहे हैं। देखो आचार्य अकलंक देव की ये एक विशेष प्रकार की पद्धति है, इसी को अनेकांत और सैद्वाद कहा हुआ है। यानी एक ही वस्तु में, एक ही पदार्थ में विरुद्ध धर्म हो सकते हैं, है ना। जो घी जो है वो जला भी सकती है, और घी जो है वो शीतलता भी प्रदान कर सकती है। दोनों ही काम करते हैं घी। आयुर्वेद में देखो आप घी का कितना उपयोग होता है। तो शरीर में शीतलता लाने के लिए घी का उपयोग किया जाता है, और फिर साथ में उसको अग्नि में डालो तो घी जला भी देती है। तो ये परस्पर विरुद्ध गुणधर्म है। दीज आर एग्जैक्टली ऑपोजिट क्वालिटीज, बट दे आर फाउंड इन अ सेम सब्सटेंस। तो इसी प्रकार से
जो वस्तु स्वरूप जिनेंद्र देव ने कथन किया हुआ है, उस वस्तु स्वरूप के अंदर में ये आया हुआ है कि इस पदार्थों के भीतर अनेक प्रकार के विरुद्ध जाति के गुणधर्म पाए जाते हैं. देयर आर अपोजिंग क्वालिटीज सब्सिस्टिंग in the object, in the dravya, in the substance at the same time. And if you do not recognize those qualities, those opposing forces, then you are not comprehending the true nature of reality. And by not comprehending this, then one does not lead to the rational perception. One does not lead to the rational knowledge. ये सब महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि इससे सम्यक दर्शन की उत्पत्ति के कारण बनेंगे, सम्यक ज्ञान बनेगा. सम्यक ज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण एक जो पॉइंट है, जो पॉइंट अपन ने द्रव्य संग्रह के स्वाध्याय में सीखा था, पुरुषार्थ सिद्धोपाय के भीतर भी सीखा था, वो क्या है कि सम्यक ज्ञान उसी को होता है जो अनेकांतात्मक वस्तु रूप का श्रद्धान करता है. एकांती को सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं होता, एकांती को सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं होता. जो ने अनेकांतात्मक वस्तु स्वरूप की जिसको पहचान है, जिसको ज्ञान है, उसी को सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है. और यही बात जो है आचार्य पूज्यपाद आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धोपाय के भीतर करी थी. जब सम्यक ज्ञान का प्रकरण आया था, उसमें उन्होंने ये बात बताई थी कि वस्तु तत्व का जो श्रद्धान है और वस्तु तत्व का जो ज्ञान है, वह अनेकांतात्मक रूप से होना चाहिए. और अनेकांतात्मक रूप से तभी बनेगा जब वस्तु के अंदर विरुद्ध गुणधर्म है, उन गुणधर्मों की पहचान हो हमें. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि परमात्मा मुक्त भी है अमुक्त भी है, मात्र मुक्त नहीं है. तो अमुक्त कैसे हो गए परमात्मा? हमने तो सुना था कि परमात्मा हमेशा मुक्त ही होते हैं. तो देखो, कथन करने की जो अपेक्षा अगर हम समझे फ्रॉम द कॉन्टेक्स्ट, इफ वी अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट फ्रॉम विच अ स्टेटमेंट इज बीइंग मेड, then we are able to reconcile these opposing viewpoints properly. तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि परमात्मा मुक्त रूप से हैं कर्म भी, यानी जो कर्म है, अष्ट रूपी द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, नो कर्म है ना. कर्म 3 प्रकार के हमने जाने थे पूर्व में. जो कर्म है वह 3 प्रकार के हैं. कौन से हैं? तो एक तो द्रव्य कर्म, फिर भाव कर्म और नो कर्म. ये जो 3 कर्म हैं, इन 3 कर्मों से सदा के लिए जिन्होंने नष्ट किया हुआ है, वे कौन हैं? तो कहते हैं मुक्त. वे मुक्त हैं. मतलब क्या? मतलब ये कि चूंकि अपनी बात मोक्ष की चल रही है, क्योंकि मोक्ष में वही जाके विराजमान होते हैं, वही सिद्ध परमेष्टि होते हैं जिन्होंने इन त्रिवर्गों को समाप्त किया हुआ है. इन त्रिवर्ग की समाप्ति अगर नहीं हुई है तो वो मोक्ष नहीं है अभी, है ना. तो ये ऐसा मोक्ष जो है वह भी 2 प्रकार का कहा हुआ है. मोक्ष जो है वह 2 प्रकार का कहा हुआ है. अपन ने द्रव्य संग्रह जी का स्वाध्याय किया था ना, तो उसमें मोक्ष मार्ग के प्रकरण में ये बात आई थी क्या कि मोक्ष भी 2 प्रकार का होता है. एक भाव मोक्ष और दूसरा द्रव्य मोक्ष. तो जिनेंद्र देव 13वें गुणस्थानवर्ती तीर्थंकर परमात्मा जो है, जो अरिहंत प्रभु है, उन्हें भाव मोक्ष की प्राप्ति हुई है, द्रव्य मोक्ष की प्राप्ति अभी नहीं हुई. और जो सिद्ध परमेष्टि है, वे सिद्ध परमेष्टि भाव मोक्ष सहित द्रव्य मोक्ष को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात उन्हें द्रव्य मोक्ष हुआ है. तो ऐसे ये जो परमात्मा है, ये परमात्मा जब कर्मों की अपेक्षा से हम चिंतन करते हैं, उनका स्वरूप पढ़ते हैं, तो हमें ये समझ में आएगा कि ये संपूर्ण रूप से मुक्त हैं. सिद्ध परमेष्टि संपूर्ण रूप से मुक्त हैं कर्म के संबंध में. अब ऐसा होते हुए भी वे अमुक्त हैं, ये आचार्य अकलंक देव कह रहे हैं. मुक्ता मुक्तय करूपाय. तो ये अमुक्तता जो उनकी कही हुई है, मीन्स दे आर बाउंड टू समथिंग. नाउ दे आर सर्टनली नॉट बाउंड टू कर्मा बिकॉज दे आर ऑलरेडी फ्री and they have done that type of a self effort in order to free themselves and go to moksha.
So from the perspective of the karma, they are not bound anymore. They are free. They are liberated soul. So when we are saying that they are actually also bound at the same time, what are they bound with? And this is where the reference to context comes into the picture. This is where the anekant comes into the picture. The multiplicity of views comes into the picture. And that goes directly to this wording. संविदादिभिः ज्ञानादि से वे मुक्त नहीं है. क्या कह रहे हैं यहाँ पे? यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो द्रव्य कर्म, नो कर्म और भाव कर्म, इन सभी कर्मों से सदा के लिए पृथक होकर जो परमात्मा बन चुके हैं, वे क्या है? कर्मों से तो मुक्त हैं, लेकिन अपनी ज्ञान रूपी शक्ति से मुक्त नहीं हैं. वे अमुक्त हैं, अर्थात अनंत ज्ञानादि गुणों से अमुक्त हैं, अर्थात अस्थि शैली से अनंत ज्ञान दर्शन गुणों से युक्त हैं. अब इनको ऐसा क्यों कहना पड़ा? क्योंकि कई मत ऐसे हैं जिन मतों के भीतर ये माना जाता है कि ज्ञान और जीवात्मा दोनों भी अलग अलग चीज हैं. देयर आर टू सेपरेट इंडिपेंडेंट एंटिटीज. यानी बुद्धि और ज्ञान, इसको दूसरे मतों के भीतर भिन्न माना गया है, अलग माना गया है. लेकिन जैन दर्शन ऐसा दर्शन है जिसके भीतर मान्यता ये है कि ज्ञान जो है वह आत्मा का कैसा गुण है? तो कहते हैं निर्बाध गुण है. निर्बाध का अर्थ क्या होता है? बाधा रहित गुण है. बाधा रहित मतलब क्या? अनऑब्स्ट्रक्टेबल क्वालिटी ऑफ द सोल इज नॉलेज. अनऑब्स्ट्रक्टेबल मतलब क्या? मतलब ऐसी कोई भी किसी भी समय में, ऐसी किसी भी जाति की पॉसिबिलिटी नहीं है जिस समय में वह आत्मा ज्ञान से रहित हो. आ रही है बात समझ में? There is not a single minutest infinitesimal second where Atma leaves the attribute, the soul leaves the attribute of knowledge. ये जैन सिद्धांत का, जैन मान्यता का प्रकरण है. तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि दूसरे मतों के भीतर जो आत्मा का स्वरूप बतलाया है, उस आत्मा के स्वरूप का खंडन यहाँ पे हुआ कि आत्मा जो है वह सिद्ध परमेष्ठी में विराजमान होकर सिद्ध परमेष्ठ भी अगर हो गई है तो वो ज्ञान से कभी मुक्त नहीं हो सकती. जैसे नैशेषिक और मीमांसक मत, वैदिक में मीमांसक मत है, वैशेषिक मत है, उन मतों के भीतर यह मान्यता है कि ज्ञान मोक्ष के बाद छूट जाता है. ज्ञान और जीव का जो सदृश संबंध है वो संयोग के कारण है और उसके बाद वो छूट जाता है और ज्ञान जीवात्मा से, आत्मा से कुछ अलग वस्तु है. क्योंकि ऐसा अगर आप माने तो फिर जो सिद्ध होके बैठे हुए हैं उनमें क्या पाया जाएगा? अगर ज्ञान आप उसको मानते ही नहीं हो तो उसमें क्या पाया जाएगा? तो यहाँ पे इसीलिए जैन दर्शन को ये स्वीकार नहीं है. और इसी बात की पुष्टि के लिए आचार्य देव कहते हैं कि मुक्त अवस्था के भीतर भी किसी अपेक्षा से सिद्ध भगवान अमुक्त हैं. अमुक्त हैं अर्थात ज्ञानादि गुणों से हमेशा संपन्न है. ज्ञानादि गुणों से संपन्न क्यों है? क्योंकि देखिए, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा कि जब केवल ज्ञान की प्राप्ति इस जीव को होती है तो उसके अनंत चतुष्टय प्रकटते हैं. यानी मोहनीय कर्म का जब क्षय होता है, मोहनीय कर्म के क्षय के निमित्त से उनमें अनंत चतुष्टय की प्राप्ति इस जीव को कही हुई है.
तो क्या है वे? अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत वीर्य, अनंत सुख। ये 4 अनंत चतुष्टय होते हैं। ये मुख्य गुणों के भीतर ग्रहण करना अरिहंत भगवान के। तो इन्हें वे कभी भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि ये इनका स्वभाव भाव है। और स्वभाव भाव से जो द्रव्य हैं, जीव द्रव्य हैं, वह कभी भी अलग नहीं हो सकता। जब वे सिद्धात्मा भी बन जाएंगे तभी वे अनंत गुणों से सहित ही रहेंगे। अब जैन दर्शन के भीतर जो ज्ञान गुण है, वह ज्ञान गुण बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? यद्यपि आत्मा के भीतर अनंत गुण बताए हैं, ध्यान रखना इस बात को, आत्मा के भीतर अनंत गुण बताए हैं। श्रद्धा है, ज्ञान है, वीर्य है, चारित्र है, क्षमा है, अनेक गुण हैं। लेकिन इन सभी गुणों के भीतर जो चेतन वस्तु है, यानी षट द्रव्यों के भीतर में जीवात्मा जो है, जीव द्रव्य है, उस जीव द्रव्य के पास एक ऐसी शक्ति है जो अन्य द्रव्यों के पास बिल्कुल नहीं है। और वह चेतना, वह शक्ति का नाम है चेतना। और वह जो चेतना गुण है, चेतना रूप जो परिणाम है, मात्र जीव द्रव्य में है। और इस जीव द्रव्य के भीतर इस चेतना का जो परिणमन जो होता है, वह परिणमन उपयोग के माध्यम से होता है ना? अगर ज्यादा थोड़ा हैवी लग रहा है तो बताना जरूर। तो देखो, ऐसा है कि ये दोनों का जो परिणमन जो होता है, वह चेतना गुण के आधार से होता है। तो आत्मा के अंदर बाकी के जो गुण बताए हैं, अनंत चतुष्टय रूप अनेक गुणों की जो प्राप्ति कही हुई है, सारे गुण जो है वो निर्विकल्प रूप गुण है। ज्ञान गुण ऐसा ही है जो सविकल्प है। समय सार जी के भीतर आचार्य अमृतचंद्र स्वामी ने इसे कहा हुआ है। तो सविकल्प रूप होने के कारण एक ज्ञान ही ऐसा है जो देखने में आता है, सुनने में आता है, बताने में आता है। इसीलिए ज्ञान गुण की जैन दर्शन के भीतर बहुत बड़ी महत्ता है। और ये ऐसा जो गुण है ज्ञान गुण, ये किसी भी पर्याय में किसी भी जीव को किसी भी कंडीशन में रहते हुए हमेशा रहता है। यानी जीव अगर निगोदिया जीव भी हो या फिर सिद्ध भगवान भी हो, सबके भीतर ज्ञानोपयोग पाया जाएगा। अगर ज्ञान जीव से रहित हो गया तो वो जीव ही नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि फिर चेतनत्व का क्या करेंगे, परिणाम का क्या करेंगे, उपयोग का क्या करेंगे? इसीलिए इक्वेशन जो बनता है वह यह बनता है, प्रवचन सार जी के भीतर भी इसकी सिद्धि आचार्य कुंद देव ने की हुई है, सोल इक्वल्स नॉलेज एंड नॉलेज इक्वल्स सोल, वाइस वर्सा। क्योंकि ये ऐसा आत्मा का निर्बाध गुण है, वह कभी भी किसी भी पर्याय में नहीं छूटता है। निगोदिया जीव को आप सोचो क्या कितना उसका क्षोभक्षम होगा। एक आप चींटी को देखो, चींटी के अंदर भी कुछ ना कुछ तो ज्ञान है कि नहीं। निगोदिया जीव तो रहने दो, ठीक है, आप चींटी को ही देखो। चींटी को आपने देखा है? तो चींटी जब भी चलती है, आपने देखा होगा, चींटी जब भी चलती है उसको अगर लगेगा कि मेरा भाई यहाँ पे इस साइड से अगर अपन गए तो मुझे क्या होगा, मैं मर सकती हूँ या फिर मेरे जीव का घात हो सकता है, तो चींटी देखो अपना मार्ग बदल लेगी। उसको कहीं से पानी दिखेगा तो पानी से नहीं जाएगी, इसी साइड से जाएगी। अगर उसको आग का एहसास हो रहा है तो आग में नहीं जाएगी चींटी। तो क्या है ये ज्ञान गुण का परिणमन है। एक छोटी सी चींटी के भीतर भी ज्ञान गुण पाया जाता है भाई। तो जैन दर्शन यही कहता है कि जीव कोई भी हो, कैसा भी हो, किसी भी अवस्था में हो, वो ज्ञान गुण से कभी रहित नहीं हो सकता।
और इसी की सिद्धि यहाँ परमात्मा को लेकर आचार्य अकलंक देव ने इस मंगलाचरण के भीतर की हुई है कि उनको अमुक्त घोषित किया हुआ है। किस अपेक्षा से अमुक्त? अनंत ज्ञानादि गुणों की अपेक्षा से वे अमुक्त हैं, अर्थात वे हमेशा उसके साथ ही हैं। तो इस प्रकार से एक ही जीव के अंदर, पदार्थ के अंदर अनेकांतात्मक दृष्टिकोण से देखें तो मुक्तता और अमुक्तता दोनों सदृश रूप में एक ही समय में पाई जाएगी। तो इसकी सिद्धि जो है यहाँ आचार्य देव ने इस कारिका के माने, इसका अर्थ क्या हुआ? एक चार्वाक मत है और बौद्ध मत है, इन्होंने आत्मा की जो स्वरूप की व्याख्या उनके धर्मों के भीतर की है, वे आत्मा के सद्भाव को नहीं मानते हैं। अर्थात बुद्ध धर्म के भीतर आत्मा को शून्यत्व कहा हुआ है मरने के पश्चात में, और साथ में एक चार्वाक मत था। उस चार्वाक मत के भीतर जो आत्मा है वह आत्मा नाम की चीज कोई होती है ऐसा कहा नहीं है। यानी जब तक शरीर है तब तक है सब, शरीर एक बार खत्म हो गया तो सब कुछ खत्म। तो मिथ्या दृष्टि की भी यही मान्यता होती है। तो चार्वाक मत का और बुद्ध मत का यहाँ खंडन होता है जब आचार्य देव कहते हैं कि ये आत्मा कैसी है? अक्षय स्वरूप है, क्षय से रहित हैं, पर्याय नष्ट हो सकती हैं, लेकिन आत्मा का जो त्रैकालिक ध्रुव परिणाम है, आत्मा का जो त्रैकालिक ध्रुव रूप शक्ति है, वह हमेशा चली रहेगी। अर्थात क्या? अर्थात वे कभी भी क्षय को प्राप्त नहीं होंगे। अक्षय, one that cannot be destroyed, one that cannot be eliminated, one that cannot be extinguished by any measure, that is अक्षय and that is soul। तो सिद्ध स्वरूप में अक्षय रूप कैसे है? तो सभी संसारी जीव भी अक्षय हैं। हाँ, निश्चय स्वरूप से सभी अक्षर हैं, द्रव्य दृष्टिकोण से सभी अक्षय हैं। ऐसा अक्षय होते हुए भी पर्याय दृष्टिकोण से कैसे हैं? चेंज करने वाले हैं, बदलने वाले हैं। और फिर सिद्ध परमात्मा जिनके पास शरीर ही नहीं है, वे अक्षय कैसे हैं? तो जिस स्थान को वे पहुंच गए हैं उस स्थान से वो कभी खाली नहीं होंगे, उस स्थान से कभी वे नीचे नहीं आएंगे, यानी कभी भी उनका अवतार नहीं होगा। अन्य धर्मों के भीतर अवतारवाद चलता है और अवतार के भीतर ये माना जाता है कि भगवान ऐसा अवतार लेके आते हैं। तो जैन दर्शन में अवतारवाद नहीं माना है। 24 तीर्थंकर अवतारवादी नहीं हैं, ये किसी के अवतार नहीं थे, ये अपने अपने गुणों को धारण किए हुए अलग अलग परमात्माएं थीं जो 24 तीर्थंकर होके गए। कोई किसी का अवतार नहीं है। तो अक्षय स्वरूप को बताकर यहाँ पे जो एक बार सिद्धत्व को प्राप्त हो चुके, एक बार जो शुद्धत्व को प्राप्त हो चुके, वह वापस अशुद्ध कभी नहीं होंगे, इसकी यहाँ पे निष्पत्ति होती है। उस स्वरूप को वे कभी भी नहीं तजेंगे, हमेशा अक्षय रूप से रहेंगे। और कैसे? और कैसे कहते हैं? ज्ञान मूर्तिम, वे ज्ञान की मूर्ति है। ज्ञान की मूर्ति अर्थात अनंत चतुष्टय रूप जो अनंत ज्ञान है वह अनंत ज्ञान से सहित है। क्योंकि वो अब परमात्मा बन चुके हैं, ऐसा होने के कारण उनका जो अब ज्ञान है वो ज्ञान का आवरण हट चुका है। द नॉलेज obscuring karma that was there before when the jiva was sansari jiva, so that is why he or she was not able to see, comprehend lot of things. Now because that knowledge obscuring karma is removed, this jivatma, paramatma, has achieved a potential to see beyond what anything can see. It can just about comprehend everything in this universe. That is called perfect knowledge. That is called omniscient knowledge. तो ये omniscient knowledge जो है, इसी को यहाँ पे कह रहे हैं ये ज्ञान की मूर्ति है, क्योंकि अब इनके पास शरीर नहीं है।
तो बहुत बार सिद्धों को जो आगम ग्रंथों के भीतर निरूपित किया जाता है, बताया जाता है, वह क्या है? तो कहते हैं ज्ञान शरीर को जिन्होंने धारण किया है वे सिद्ध हैं। क्या शब्द उपयोग किया? ज्ञान रूपी शरीर को जिन्होंने धारण किया है। हमने तो कौसा औदारिक शरीर धारण किया हुआ है यहाँ पे, लेकिन सिद्ध भगवान को तो ऐसा किसी भी जाति का शरीर नहीं है। तो उन्होंने कौन से शरीर को धारण किया? तो कहते हैं ज्ञान रूपी शरीर। ज्ञान रूपी शरीर मतलब क्या? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। इसमें समय सार के भीतर जो आचार्य अमृतचंद्र देव ने कलश लिखे हुए हैं, एक कलश ऐसा आया हुआ है जिसके भीतर वे कहते हैं आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम। आत्मा ही ज्ञान है, स्वयं ज्ञान ही आत्मा है। तो उसी को यहाँ पे बता रहे हैं, ये ज्ञान मूर्ति है, ज्ञान मूर्ति रूप है। अर्थात जैसे पूर्व में बताया, आत्मा का और ज्ञान का सिद्धांत की अपेक्षा से एक शब्द आता है, उसको कहते हैं तादात्म्य संबंध। तो ये आत्मा में और ज्ञान में तादात्म्य संबंध को बताता है, अर्थात एक दूसरे के बिना अविनाभावी रूप से रह नहीं सकते। जहां जहां आत्मा है वहां वहां ज्ञान होगा ही होगा, और जहां जहां ज्ञान है वहां वहां आत्मा जीवात्मा है ही है, क्योंकि यही एक क्वालिटी है जो षड द्रव्यों के भीतर से जीवात्मा को सबसे अलग रखती है। और इसी के कारण षड द्रव्यों के भीतर जीव द्रव्य है, वो जीव द्रव्य सुख और दुख का अनुभव कर पाता है, ये इसी के कारण है ना। तो इस प्रकार से जीव को और ज्ञान को दोनों के बीच में तादात्म्य रूपी संबंध को बताने के लिए यहाँ पे कह दिया कि ये जो परमात्म स्वरूप है वह कैसे हैं? तो कहते हैं ज्ञान की मूर्ति स्वरूप है ना। और फिर अभी अंतिम जो शब्द आया हुआ है वह था परमात्मा, है ना। तो परमात्मा क्या है, किस अपेक्षा से यहाँ परमात्मा कह रहे हैं, इसको अपन अगले समय में जानेंगे। आज अपना समय हो गया है, इतना ही रखते हैं। तो देखो, ये अपन ने आज मंगलाचरण कर लिया। अभी हर टाइम अगले टाइम अपन जब आएंगे ना, तो इसको बाकी के ग्रंथों के जैसा मंगलाचरण करते हुए अपन इस ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, है ना। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।